कर दिया। एक मिनट कौतिक सर को तू हाँ हाँ ठीक है એ ચાલુ કરે છે એવું કહે છે ખાલી તમે એડ થઈ જાઓ હા તારું કનેક્ટ થઈ ગયું મારું થાય છે કનેક્ટ બસ તો પછી હવે ધ્રુવ ચેક કર લે ને એકવાર સ્ક્રીન શેરિંગ કરું છું તારામાં દેખાય છે કે નહીં એકવાર જો આ દેખાયો હાથ એક बराबर अब एक वीडियो ऑन करो जो ऑडियो जोड़ ले। हे दोस्तों, आपने मुंबई के डब्बा वाले के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं की और उनके बराबर हाँ ऑडियो में आ वीडियो में आउट થાય છે ચોટેજ વાંધો નહીં શું 9:55 है मीटिंग आईडी લઈ લો ને સર લઈ લો ફોન લઈ લો ના તો ધ્રુવ નું ચાલે છે ને અને તારે પેલું શું કે સાયલેન્ટ કેને થાય છે એરોપ્લેન મોડ कर दो कहीं જરૂર नहीं તો એરોપ્લેન મોડ પર તો ડેટા આવશે हाँ तो साइड पर થી પેલું નીચે कर દેવાનું વાઇબ્રેટ થઈ જાય સાયલેન્ટ ને વાઇબ્રેટ પોતપોતાના ફોન અહીંયા અમારે આગળ નેટ તો આવે છે મને કઈ કિલો ઇન્ટરનેટ બંધ કરી નાખ્યું આ તો બોલે કમ્પ્લેન નાખી દે ને આજે આવી જશે તો એ એક તો ઇન્ટરનેટ તો ફૂલ આવે છે પણ નો ઇન્ટરનેટ લાગેલું આવે છે હા એટલે એ લોકોના જ પ્રોબ્લેમ છે તા એ લોકોની કનેક્ટિવિટી જતી રહે છે એ લોકોનો જ પ્રોબ્લેમ છે આપણો પ્રોબ્લેમ નથી કયું ઇન્ટરનેટ સેટ કરું છે આપણે યુ બ્રોડબેન્ડ હવે પહેલા અહીંયા યુ જ હતું બિલ્ડિંગ માં જે હોય તે જ લેવું પડે ને કોમન એવું હોય નખાવે કરીએ આનું એક પતી જાવ ને આ વર્ષનું બરાબર બરાબર છે હવે જો તારામાં સ્ક્રીન દેખાય પેલું પેન વાળું દેખાય છે હવે આ મિનિમાઇઝ કરું છું જો હવે ગઈ મિનિમાઇઝ થઈ મારામાં પાર્ટિસિપેન્ટ કેમ નહીં દેખાતા અરે અચ્છા ઓકે હવે આમાં છે ને અલાઉ પાર્ટિસિપેટ mute participate upon entry allow participate to unmute themselves okay चेक करो ले दोस्तों, आपने मुंबई के डब्बा वाले के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात आ दरवाजो बंद कर दे हाँ विजय से लेफ्ट रेकॉर्डिंग चालू છે એટલે સંભાળીને રેકોર્ડિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે મારે અહીંયા ચાલુ છે ને અરે અટેન્ડ લઈ લે યાર બહુ સાંદરી કરતી અટેન્ડન્સ તમારી લેક્ચર એટલે વિદ્યાની મને યાદ નહીં
हाँ तो पूछ ले कर दे ऐड करवा वांधा नहीं 10 वागे चालू कर दे शायद Everyone is requested to write the name as well as the branch name. नाम और ब्रांच दोनों लिखना है तो जरा रीनेम कर लो जिसका भी पेंडिंग है.
हाँ यशगिरी बोलो, क्या हुआ? आपने रेज हैंड किया है, अनम्यूट करो। गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक। અરે કૃતિકા, તારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ક્યાં ગઈ? એ ક્યાં બીકોમ કરવાની છે? અરે બડે લોગ સીએ માં જ બીકોમ કરી લેશે બધું ભેગું જ. એમ ગાંડા હે ગાંડા લોકો. તારે શું કઈ કઈ થાક્યા? આપણે નાના લોકો ધીરે ધીરે ઉપર વધીએ. ઉપર વધીએ એ જ. સરસ. अरे गजेंद्र, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल का लेक्चर देख लिया? लेक्चर 1? हाँ सर, देख लिया। देख लिया? अरे कल हमने बताए थे आपको कि होमवर्क नहीं करना है। वो थोड़ा सा मिस हो गया था इसके लिए। ओके ओके ओके। हाँ, लेक्चर 2 आज से जो लेक्चर आप देखोगे ना, उसमें जो कंटेंट होगा ना, दैट इज द कंटेंट ऑफ कॉलेज। तो वो आज से आपको नोट करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, कल तो खाली बेसिक देखा ना, खाली फंडा थे, बेसिक फंडा। वो तो आपके नॉलेज के लिए था, राइट? यस सर। जब तक सब लोग आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट हैं, किसी को कुछ पूछना है कल के लेक्चर देखने के बाद? जनरल कुछ भी थॉट्स, कोई भी क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई सजेशन, कोई है जो आगे आके कुछ बात बताना चाहेगा? कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें? रिया हसे છે, મનમાં રિયા હસે છે। સર બરાબર જ છે સર। અમે અત્યારે લોકડાઉન માં ભણીએ છીએ, એ જ મોટી વાત છે। We'll wait for 2-3 minutes more. आज थोड़ा बहुत लिखना रहेगा। कल बोला था बुक निकालने को, लेकिन कुछ लिखवा नहीं था, लेक्चर 1 था। आज बुक और पेन साथ में रखना, थोड़ा सा लिखेंगे। तो लास्ट मिनट पे आपको भागम भाग ना करनी पड़े, तो बुक और पेन साथ में लेके ही बैठो। अभी से आप जल्दी एंट्री हो चुकी है आपकी, तो बुक और पेन साथ में रखो। हार्दी, યસ સર। લેક્ચર 1 જોયું? હા, સાચું બોલજે। સાચું જોયું। સરસ, ખબર પડી બધી? હા। કેવું લાગે છે? 11-12 થી કઈ નવું લાગે છે? ના, એટલે હવે એવું જ ને। એટલે કન્સેપ્ટ એ છે, પણ લાગે છે એવું કે આપણે પ્રેક્ટિકલ વધારે જઈએ છે, હા, રાઈટ? 11-12 માં આપણે ભણ્યા છે, પણ આપણે જોયું ને બધું થિયરેટિકલ જ કવર કરતા હતા, હા, રાઈટ? બટ બીકોમ માં આપણે, તમે લેક્ચર જોશો ને હજુ આગળ, તો તમને ખબર પડશે કે બધું આપણે પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે અપ્લાય થાય છે, બરાબર? હા। દેવ ગોયલ, ગુડ મોર્નિંગ સર। ગુડ મોર્નિંગ। યસ સર। કેવું ચાલે છે જીવન લોકડાઉન માં? બસ ચાલે છે, હે? ઘરે જ ચાલે છે, ઘરે જ ચાલે? ઘરની 4 દિવાળોમાં ચાલે છે। જોજે સેવસડ નાખા તો સેવસડ વાળા પોઝિટિવ આયા છે।
ના ના સેવસળ સર બહાર જ નહીં નીકળ્યો છું બોર્ડ પછી તો હા, ઘરનું સેવસળ બી ના ખાતો હવે. ઘરનું ઘરનું તો ચાલે જ સર કે ના ચાલે 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 ચાલે, ઘર વાળા પર ભરોસો હોય તો ચાલે. ઘર વાળા પર ભરોસો જ હોય ને સર We'll wait for 2 more minutes. कुछ और भी 30 पार्टिसिपेंट्स बाकी है. किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कुछ बोलना है, रेज हैंड कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास. ये वीवो रीनेम कर दो बेटा. जो लोग भी है नाम और ब्रांच नेम दोनों लिख देना. वीवो ओप्पो रखोगे, कुछ क्रांतिकारी आएंगे आपको बैन कर देंगे. अरे हरी बोल, कुछ तो बोल. क्या सर? कैसा चल रहा है? चल रहा है अभी बीकॉम के साथ कुछ चल रहा है? सीएस ये चल रहा है. जरा म्यूट कर दो बेटा अपने आप को वापस. बस ये 100 पार्टिसिपेंट टच हो जाए तो विल स्टार्ट. सब लोग अपने वीडियो ऑन कर ले. धैर्य, ध्रुव चेक करो सबके वीडियो ऑन है या नहीं है. सब लोग प्लीज वीडियो ऑन कर दो, नहीं तो 5 मिनट के बाद आपको रिमूव किया जाएगा. कृपया यात्री ध्यान दे. ये मुझे एक नाम दिख रहा है ओप्पो F5. बेटा हमारे को होस्ट जो है ना वो बहुत बड़े क्रांतिकारी है. वो ओप्पो वीवो को बैन कर रहे हैं आजकल. देखना आपकी स्क्रीन ना तोड़ दे. प्लीज रीनेम कर दो, जल्दी जल्दी रीनेम कर दो. खुशी देसाई वीडियो ऑन कर दो बेटा. आप ही के सेफ्टी के लिए सब वीडियो ऑन नहीं रखोगे, कुछ गैर लोग आ जाएंगे और हमारे डेटा चुरा लेंगे, आपके डेटा चुरा लेंगे. तो आपकी सेफ्टी मेरे हाथ में है, मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है. फाइन, यस. तो नाउ विल स्टार्ट. ज्यादा वेट नहीं करेंगे, स्क्रीन पे सब देखेंगे. कल लेक्चर नंबर 1 आपने जो देखा होगा वो एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था. बेसिक कुछ बिजनेस के फंडा थे कि किस तरीके से बिजनेस में आपको एंट्री लेना है. पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपको कमाना है. सीधा कमाने के पीछे भागने का नहीं. लर्निंग इज इन प्रेजेंट, अर्निंग इज इन फ्यूचर. राइट, ये बेसिक फंडा थे जो आपने देखे थे. स्विमिंग पूल वाला आपने एग्जांपल देखा होगा, स्विमिंग पूल वाला. राइट, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है. फिर टॉयज वाला एक एग्जांपल आपने देखा होगा, टॉयज वाला कि एकदम अलग सोच निकाली, हॉस्पिटल में घुस के बिजनेस करने की सोच लेके आया. तो वैसे ही कल जैसे मैंने आपको कैडबरी वाला एक केस स्टडी आपको बताया था, कैडबरी का वीडियो आपने देखा था कि किस तरीके से पहले बच्चों पे फोकस किया, फिर यूथ एडल्ट पे फोकस किया, फिर पूरी फैमिली पे फोकस किया, फिर उसके बाद फेस्टिवल सीजन पे फोकस किया. 5 रुपए की डेयरी मिल्क से 500,000 रुपए तक के सेलिब्रेशन तक पहुंच गए. गिफ्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया कैडबरी के साथ. स्वीट्स कुछ मीठा हो जाए उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया कैडबरी के साथ.
तो बिजनेस में कुछ ना कुछ नया नया लोग लेके आ रहे हैं, राइट। तो वैसे ही अगर आपको आपके बिजनेस में बहुत ही एक एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड मेंटेन करना है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है मुंबई डब्बा वाला। मुंबई डब्बा वाला, अगर आप कॉमर्स में हो, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से आप जुड़े हुए हो, आगे जाके बिजनेस का सोच रहे हो, तो हम सब के लिए एक आइडल है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है मुंबई डब्बा वाला की। ध्यान से सुनना, जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं डब्बा वाला, तो हमें ये लगता है कि सर ये डब्बा वाला मतलब कि जो टिफिन की सर्विस देता हो। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डब्बा वाला जो है मुंबई में ये ओरिजिन हुआ है ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक, और ये लोग खाना बना के आपको टिफिन की सर्विस नहीं देते, ये लोग आपका ही खाना, आपके घर का खाना आपके घर से उठा के आपके ऑफिस तक पहुंचाते हैं। मतलब इनका काम क्या है, सिर्फ डिलीवरी देना, टिफिन डब्बा की सर्विस देना, डिलीवरी देना। खाना किसका होगा, आपके घर का, लेकिन पहुंचाएगा कौन, डब्बा वाला। नॉर्मली टिफिन सर्विस हम क्या समझते हैं कि वो जो टिफिन सर्विस वाला है वो ही खाना बना के देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुझे बाहर का नहीं खाने का है, मुझे मेरे घर का खाने का है, बराबर है। मेरे घर पे एकदम मस्त बनता है, आई एम सेटिस्फाइड, तो मुझे मेरे घर का ही खाना है। लेकिन अगर मान लो अब जैसे कि मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूँ, अब मैं अपने घर पे अपने बीवी को बोलूंगा कि भाई 7 वागे तार उठीने जमवानु बनावू पड़से, एज अ वाइफ वो बना के देगी, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी हम क्या सोचते हैं कि हर रोज सुबह पूरे साल इतना जल्दी उठ के उसको क्यों परेशान करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको खाली ऐसा बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत नाश्ता जो है वो मुझे अर्ली मॉर्निंग दे दे, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। फिर आराम से 11 साढ़े 11 बजे वो खाना बनाना शुरू करती है, फिर 12 साढ़े 12 उसका खाना रेडी हो जाता है। तो ये जो डब्बा वाला है, डब्बा वाला वो मेरे घर पे जाएगा, और मुझे मेरे ऑफिस में 1 बजे पहुंचा देगा। खाना कितने बजे बन गया है, 12:30, और मुझ तक कितने बजे पहुंच रहा है, 1 बजे। मतलब मुझे कैसा खाना मिलेगा, गरम गरम मर से मज्जा पड़ी गई। वो 7 बजे का अगर मैं टिफिन लेके आया होता, 7 बजे का खाना 1 बजे खाना पड़ता। हमारे सब्जी का जो रसा जो है, जो रोटी पे जो घी लगाया है, सब जो है वो आपके बैग को भी थोड़ा टेस्ट करने को मिल जाता। इसलिए डब्बा वाला जो है वो आपका ही खाना आपके घर से आपके ऑफिस पे पहुंचाता है। इतना ही नहीं, अगर मुंबई में तो अब मान लो कि आपके ऑफिस पे डब्बा पहुंचा दिया, तो वो डब्बा आपको वापस लेके आने का, आपको खुद लेके आने का नहीं, वो डब्बा वाला वापस 3 साढ़े 3 बजे वापस आपके ऑफिस पे आएगा और डब्बा भी वापस लेके जाएगा। मतलब डब्बा देने भी आता है और वापस लेने भी आता है, तुमको बैठ के खाली ठूसने का है, जलसा करो, बराबर। और इनका नाम, डब्बा वाले का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके 16 लाख इस टू 1 एरर है। 16 लाख ट्रांजैक्शन किए, डब्बे ट्रांजैक्शन किए, तब जाके एक एरर हुआ, एक सिंगल एरर। इतना सुपर लेवल पे काम कर रहे हैं। और आपको पता है इन सबको मैनेज करने वाले 50% लोग अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़। तो हम तो पढ़े लिखे हैं, तो हम तो अच्छा कर सकते हैं। तो इसका ही केस स्टडी देखना है आपको, तो वीडियो ऑन कर रहा हूं, आराम से जरा देखना। ध्रुव जरा कंफर्म करो, वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे? आपको कुछ दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है। हे दोस्तों, आया? हाँ सर, अभी आया। ठीक है, ऑडियो चेक करते रहना, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना।
ठीक है, बाकी सब लोग ध्यान से जरा सुनेंगे। आपने मुंबई के डब्बा वाले के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं की और उनके पीछे का मोटो और इंस्पिरेशन की। सो लेट्स बिगिन। महादेव हौजी नाम के एक व्यक्ति ने 1890 में मुंबई में लंच डिलीवरी सर्विस शुरू करी थी। शुरुआत में उन्होंने तकरीबन 100 लोगों के साथ मिलकर ये महान कार्य की शुरुआत की थी। बाद में 1956 में नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स ट्रस्ट के नाम से ये चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, जो कि अगर आज बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 5000 से ज्यादा डब्बा वाला काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास आज 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं जिनको वो लोग हर रोज टिफिन डिलीवर करते हैं। मतलब कि हर एक डब्बा वाला 30 से 40 टिफिन कैरी करता है, और वो भी मुंबई की क्राउडेड लोकल ट्रेन्स में। डब्बा वाला की खास बात यह है कि उनकी सर्विस 365 डेज अवेलेबल होती है, फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, ठंड हो या फिर गर्मी हो। मुंबई में उनके बारे में कहा जाता है कि इन हैवी रेन लोकल ट्रेन्स में स्टॉप बट डब्बा वाला नेवर स्टॉप। सरप्राइजिंग बात यह है कि उन सबकी एवरेज लिटरेसी 8वीं पास है, फिर भी उनकी एरर रेट है 1 in 16 मिलियन। मतलब यह हुआ कि हर 1.5 करोड़ डिलीवरी में महज एक भूल होने के चांस रहते हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना। उनका मोटो है कस्टमर राजा नहीं बल्कि महाराजा है। ऑनेस्टी उनकी स्ट्रेंथ है। वह लोग किसी भी कस्टमर से टिप नहीं लेते। डिब्बा वाले लोग डिब्बे के साथ वैल्यू एडेड सर्विस भी कस्टमर्स को देते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर अपना चश्मा घर भूल गया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, तो वो लोग टिफिन के साथ डिलीवर करते हैं। नॉर्मली एक टिफिन 5 या 6 डब्बा वाले के पास होकर गुजरती है, फिर भी उनकी एक्चुअल डेस्टिनेशन पहुंचती है, और वो भी आइडियल लंच टाइम 1 बजे से पहले। डिब्बा वाले लोग ना ही सिर्फ 1 बजे से पहले डिब्बा पहुंचाते हैं, बल्कि वो लोग लंच टाइम पूरा होने के बाद टिफिन को रिस्पेक्टिव घर भी वापस डिलीवर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर कस्टमर को वह लोग एक दिन में 2 डिलीवरी करते हैं, और वो भी 500 रुपीज पर मंथ जैसे कम दाम में। मुंबई जैसे क्राउडेड सिटी में 2 लाख डिलीवरी करना, और वो भी टू एंड फ्रो, मतलब कि 4 लाख डिलीवरी पर डे ऑलमोस्ट विदाउट अ सिंगल एरर, ये अपने आप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बड़ा एग्जांपल है। और तभी हार्वर्ड और आईआईएम जैसी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने उस पर केस स्टडीज भी की है। तो डब्बा वाला से आप और हम क्या सीख सकते हैं? द फर्स्ट वन इज वी डोंट नीड टेक्नोलॉजी टू बी एफिशिएंट। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टूल, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कम कंट्रोल करते हैं और टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी से। तो आज भी उनका सिस्टम इतना रोबस्ट है कि उन्हें कोई मैसेजेस, एसएमएस या फिर ईमेल्स करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है जो अपने आप ही चल रही है। द सेकंड पॉइंट इज अ गुड टीम इज अ ग्रेट एसेट। बिजनेस में कई बार लोग बहुत सारी चीजें अकेले ही करने की मिस्टेक करते हैं, और उसका रिजल्ट यह होता है कि वह लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि हर एक अच्छा एम्प्लॉय एक एसेट है, और जब हम इन अच्छे एम्प्लॉयज को साथ में रखेंगे टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, कॉमन प्रोसेस एंड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो वो एक वेल ऑइल्ड मशीन, एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है उस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए। एनी गुड टीम वर्क इज अ ग्रेट एसेट फॉर एनी कंपनी और एनी कंट्री और एनी सर्विस। देखा आप लोगों ने वीडियो ध्यान से, राइट? मुंबई डब्बा वाला बहुत इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी है। अगर आप बिजनेस की दुनिया में जाते हो तो आपको ये सारे कुछ सक्सेसफुल लोगों को तो ध्यान में रखना ही है, तो ही आप कुछ ना कुछ नया और बेटर स्टैंडर्ड क्वालिटी पे पहुंच सकते हैं। आयुष, प्रताप नगर। आयुष, यस सर। बेटा क्या देखा आपने और क्या सीखा? क्या हमने सीखा कि एक पॉइंट बताओ जो आपको लगता है कि सर ये वीडियो देखने के बाद अगर फ्यूचर में मैं बिजनेस करूंगा तो सर मैं इस चीज का ध्यान तो 100% रखूं। एक ही पॉइंट। सर बात ऐसी है कि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बाहरी एक्सपीरियंस भी ज्यादा चाहिए। तो हम अगर बाहरी एक्सपीरियंस ज्यादा गेन करेंगे
तो हमें उतना लाइफ में उतना एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा और हम वैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही ऐसा पर्सनल लेवल पे बात बोल दिया। ठीक है, हेली सुभानपुरा, बेटा एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट। अगर बिजनेस चालू किया तो मैं पार्टनरशिप में ही स्टार्ट करूंगी। एक क्यों करवाए? ना कराए। अरे जोरदार, सरस, ठीक है। म्यूट करो। विश्वा परीक, ओपी रोड, बेटा एक पॉइंट बताओ, कोई भी एक पॉइंट खाली। हाँ सर, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, पर टेक्नोलॉजी के बिना भी हम अगर बिजनेस करना चाहे तो हम कर सकते हैं। और वी शुड मतलब हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बिना भी सक्सेसफुल हो सके बिजनेस। यस, शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट मत बनो। मत बनो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है मुझे, कौन दिख जाएगा, कौन दिख जाएगा? यस यस, देखा ही गयो। यस यस, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। 1 point is there. સર એક તો મેનેજમેન્ટ કે મેનેજમેન્ટ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ અને બીજું ઓનેસ્ટી હોવી જોઈએ કસ્ટમર જોડે, તો બીજી વખત કસ્ટમર ટ્રસ્ટ કરે. પરફેક્ટ પરફેક્ટ, ઓનેસ્ટી। જેવું તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જોડે, ગર્લફ્રેન્ડે બોયફ્રેન્ડ જોડે ઓનેસ્ટી રાખવાની, કમિટમેન્ટ રાખવાનું, બરાબર? હાથ પકડીને બીજી તરફ જોવાનું। રાઈટ. અરે જોરદાર જોરદાર સર, આ તમે વચ્ચે વચ્ચે પર્સનલ લેવલના જે તમે સજેશન આપો છો ને, જોરદાર છે, સરસ। આપણે કેવું પ્રોફેશનલ પર્સનલ ને બેલેન્સ કરવાનું, બરાબર? યસ, તો જ ચાલે ને. તો જ ચાલે જીવન, સાચી વાત છે। બધું મોહ માયા છે। હવે सरस 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 सरस। कौन ज्यादा हंस रहा है उसको जरा पूछेंगे, कौन ज्यादा हंस रहा है? जल्दी 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 जल्दी। अरे शिवम, शिवम बेटा, शिवम बेटा, हाँ सर। एक पॉइंट बताओ जो आपने वीडियो देख के कुछ सीखा। एक पॉइंट खाली, बिजनेस में आप क्या करोगे? સર આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય ને તો ખાલી આપણા ફંડ સાથે નહીં પણ બોરોડ ફંડ સાથે પણ સ્ટાર્ટ કરે, એટલે કદાચ લોસ થાય તો આપણે વધારે ના થાય। બરાબર છે, પણ પછી લોસ થઈ ગયો તો બીજાને કેવી રીતે ચૂકવવાનું? એ તો પછી ધીરે ધીરે થાય ને, પણ હવે તે યશ પાસેથી ઉધારી લીધી હોય, યશ પાસેથી તે ઉધારી લીધી હોય અને તને લોસ થઈ ગયો બિઝનેસમાં, તો યશ ભલે ભાઈબંધ છે તારો, પણ યશ શું કહેશે? યશ શું કહેશે? પૈસા લા પૈસા લા એવું કહેશે કે વાંધો નહીં દોસ્ત, આરામથી આપજે, તારા છોકરાઓ થાય પછી આપજે? ના ના એવું નહીં, એવું ચાલે ના। એટલે ભાઈ બોરોડ ફંડ બી સાચવીને, એના કરતા પોતાના ફંડ હોય ને ત્યારે જ ધંધો કરવાનો। बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करो ना, तो कोशिश करने की बोरोड फंड ज्यादा ना हो, क्योंकि उधारी का जो बर्डन है ना वो बहुत खतरनाक है। पोताना पैसा डूबे ने तो सहन थाय, बराबर? पोते लाफो मारे तो चाले, पण बीजो मारे तो चाले? समझे समझे? ओवे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कृष्णा ओपी रोड, कृष्णा एक पॉइंट। सर टीम वर्क। टीम वर्क, ठीक है। ये टीम में क्या करने का, टीम में क्या करने का? ऐसा गरबा खेलने का? नहीं सर, सर सारे मेंबर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो भी हो वो सारे कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। कैसे Then only it कोऑर्डिनेट? will go सपोज तुम तुम्हारे टीम के कैप्टन हो, बराबर? तुम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, वुमेन्स क्रिकेट टीम, कैप्टन बनोगे? हाँ। अच्छा, तो तुम तुम्हारे ये टीम को, अब मान लो लास्ट एक ओवर में सामने वाली टीम को 10 रन बनाने, 6 बॉल में 10 रन बनाने, यू आर द कैप्टन ऑफ फील्डिंग टीम, तो तुम तुम्हारी टीम को क्या बोलोगे? सर इन अ वे टू अवॉइड देम मेकिंग रन्स। हाँ, तो मतलब इतना ही बोलोगे?
हाँ मतलब फिर वो स्ट्रैटेजीज उनको देनी होगी। क्या मैं वही बोल रहा हूँ, क्या 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 जल्दी ऑन द स्पॉट कैप्टन हो तुम, ऑन द स्पॉट सर क्या फील्डिंग चेंज, हाँ, बैकअप मतलब कुछ होता तो होगा ना प्रेशर में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा रुको, अभी वॉइस आ रही है। हाँ अच्छा तो तुम सबसे पहले सबको इकट्ठा करोगे, हाँ फिर उनको क्या बोलोगे, क्या ऐसा क्या अपनी स्पीच दोगे? विराट कोहली हो तुम, फीमेल विराट कोहली, अरे अनुष्का शर्मा हो, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? फील्डिंग चेंज कुछ सोचा तो होगा ना ऐसे सिचुएशन के लिए, तो फील्डिंग चेंज करवा दी। फील्डिंग अदला फिर बदली करोगे, ठीक है फिर बॉलर द बेस्ट वन हु कैन टेक विकेट्स, हु हैज द टेंडेंसी टू टेक मोर विकेट्स, उनको फिर बोला। आप देखो जरा, इसको अपने बिजनेस के कंसेप्ट के साथ जोड़ते हैं कि अगर आपका बिजनेस नीचे जा रहा है या लॉस होने के चांस है, तो थोड़ा बहुत क्या करो, बदलाव, थोड़ा बहुत आपको स्टाफिंग ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, झाकू झाकू याद आवे छे? स्टाफिंग 12th स्टैंडर्ड 5th चैप्टर था, उसमें ऐसा पूरा रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, फिर सिलेक्शन के प्रोसीजर थे, याद आया? राइट। तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ नया नया स्ट्रेटेजी बनाओगे। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट, आप उस टाइम पे सबको ये बोल सकते हो सबसे पहले कि मुझे आप सब पे भरोसा है, मुझे आप सब पे भरोसा है, आप अपना 500% दो, हारोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना बेस्ट ये 6 बॉल सबको देना है, बराबर। ऐसी फील्डिंग करना कि पैंट फट जाए, लेकिन फुल फ्लेज अपने एफर्ट्स जो है वो करने हैं, ऐसा हम टीम को बोल सकते हैं। तो उनको क्या लगेगा, मजा आएगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, मॉरल बूस्ट होगा कि ये कैप्टन जोरदार है यार, वरना दूसरा कोई कैप्टन होगा और हार गए तो सीधा गाड़ो, सीधी गाड़ो जापे के कम हारी गयो, केम बॉलिंग बराबर ना नाखी, केम फील्डिंग बराबर ना करी। लेकिन ऐसा तुम करोगे, अंदर अंदर ही बवाल होगी, तो जय श्री कृष्ण, लॉन्ग लास्टिंग कभी भी चलता नहीं है, बराबर है, ठीक है। और एक लास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे जीवन में, पढ़ाई के जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अक्षा ओपी रोड, बेटा 1 पॉइंट। यस सर। 1 पॉइंट। सर हमको मैनेजमेंट करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। ओके, सिर्फ दिमाग चलना चाहिए। छोड़ दे पढ़ाई। नहीं, दिमाग चलना चाहिए, दिमाग भी हमारा इम्पोर्टेंट है ऐसा। अच्छा, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? सर पढ़ाई से हमको मतलब नॉलेज देती है, कोई हमको अरे पढ़ाई से हमें यही तो सबसे मेन है, बद्दा ने समझाओ, दिमाग में डालो कि पढ़ाई क्यों करते हैं। पढ़ाई से आपको एडिशनल नॉलेज मिलता है, दुनिया तो तुमको सिखाएगी, लेकिन आज मैं जो बैठा हूँ वो कुछ किताबें पढ़ के बैठा हूँ, कुछ नॉलेज लेके बैठा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा नॉलेज है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, ताकि आप जब वो प्रैक्टिकल दुनिया में जाओ तो आप पहले से क्या हो, प्रिपेयर्ड हो, पहले से प्रिपेयर्ड हो। इसलिए ये सब लेक्चर सुनने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, भणेलू हमेशा काम लागे। इसको बर्डन नहीं समझना है, ज्ञान है। बाबा रामदेव की जड़ी बूटी है, कभी ना कभी काम लगती ही है, योगा से ही होगा और फिर पढ़ाई से ही होगा, समझे? ठीक है। अच्छा, अब वॉलेंटरी कोई ऐड करना चाहेगा कुछ अपनी बातें, बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ बातें या वीडियो से जुड़ी हुई कुछ बातें? कोई वॉलेंटरी है? अच्छा, कृषित मेरे भैया, कृषित भैया किधर गए? कृषित अनम्यूट करो सर। यस એવું કહું છું કે આપણે
જે 60:1 રેશિયો રાખે છે એ રેશિયોને ધ્યાન રાખવાનું. કયો રેશિયો? ફરી 60 lakh है ना, 60 lakhs is to 1 ए रेशियो. मतलब हमें कोशिश करनी है कि एरर हो ही ना, बराबर है? यस सर. लोग बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि चालू कर देते हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम आएगा ना उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे, लेकिन उससे अच्छा आप ऐसी कोशिश करो ना कि कस्टमर को प्रॉब्लम आए ही ना. ये सोच डेवलप करके रखो. अगर आप ऐसा सोचोगे कि प्रॉब्लम होगा तो आएगा, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम होगा ना तो आपके पास नहीं आएंगे. प्रॉब्लम होगा ना तो आपके पास नहीं आएंगे. आपके जैसे मार्केट में बहुत सारे उनके पास चले जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत सोचो कि प्रॉब्लम आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं प्रॉब्लम होगा तो हर बार तुम्हारे पास ही आएंगे. जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ही आए. उस सिचुएशन में जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा ना उनके पास चले जाते हैं. तो मार्केट में कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, तो मौका देने का नहीं. मौका दिया ना तो खत्म. 3 हिट में 6 कोई मारी देगा. नो बॉल नाखवानो ज नहीं. नो बॉल डाले तो तकलीफ, चांस देने का ही नहीं. समझे? बेसिक है एकदम ये सब. फाइन. चलो तो अपनी बुक और एक पेन निकालो. छोटे मोटे नोट्स थोड़ा लिखेंगे ताकि अच्छा लगे, बुक और पेन को अच्छा फील हो. हेडिंग डाल दो. SPB सब्जेक्ट का नाम डाल दो. SPB फुल फॉर्म बता दो वापस. स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस. सब लोग लिखेंगे, फिर बाद में मैं किसी को भी बोलूंगा पढ़ने के लिए, तो लिखना है. एक्टिंग करना पड़ेगा तुमको. रैंडम बेस पे बाद में पूछा जाएगा आपको पढ़ने के लिए, तो लिखना, आपको काम लगेगा. हेडिंग डाला SPB, सब्जेक्ट का नाम स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस. यूनिट 1 सेमिस्टर 1. बराबर. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो वर्ड एक्टिविटी. लिखो एक्टिविटी का मीनिंग लिखवा रहा हूं. एनी वर्क डन. एक्टिविटी के बाजू में लिखो एनी वर्क डन. बराबर. सिंपल है, लर्न हो जाएगा. वापस जरा बुक में देख के पढ़ लो. एक्टिविटी मीन्स एनी वर्क डन. कोई भी काम नहीं बोलते मैं ये काम कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं. सुबह मैंने ये किया, दोपहर को ये किया, शाम को ये किया, रात को ये किया, तो ये पूरे दिन के क्या है? काम. तो वो क्या है? एक्टिविटी. नेक्स्ट लाइन में लिखो 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. ये सब आपने पढ़ा हुआ ही है, स्टार्टिंग है कॉलेज का, इसलिए वापस टॉपिक रिपीट हो रहे थोड़े. लिखना है 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. बराबर. उसके नीचे 1 करके लिखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड आपको पता ही है. 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देवी का कार्य विभाग पढ़ो तो जरा, जो लिखा आपने. एक्टिविटी. गलत. स्टार्टिंग सब्जेक्ट का नाम तो बोलो. किधर गए? अनम्यूट करो बेटा. किधर चले गए? अरे वापस आ जाओ. हेलो आवार. चलो ठीक है, किसी और को पूछ लेते हैं, बाद में वापस उस पे जाएंगे. किसको पूछेंगे हम? अरे प्रांजल को पूछ लेते हैं. प्रांजल पटेल
Pranjal, please read whatever you have written. Structure and process of business. Unit 1. Activity. Any work done. There are two types of activity: economic activity and non-economic activity. ठीक है, डन। चलो लिखो आगे, म्यूट कर दो अपने आप को, लिखो आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखो। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखो, उसका मीनिंग एनी वर्क डन अगेंस्ट विच, एनी वर्क डन अगेंस्ट विच you receive। प्रीत प्रताप नगर क्या लिखेंगे? प्रीत, अगेंस्ट विच यू रिसीव। आप प्रीत बोलो बेटा। अगेंस्ट विच कोई भी काम बदले में क्या मिलेगा इकोनॉमिक में? मनी मनी मनी। अगेंस्ट विच यू रिसीव मनी लिखो सब लोग। Against which you receive money। एग्जाम्पल, उसके नीचे के एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, फार्मर सेलिंग क्रॉप्स। एग्जाम्पल नंबर 1, फार्मर सेलिंग क्रॉप्स। अच्छा, खुशी देसाई, खुशी देसाई। हाँ खुशी बोलो, अनम्यूट करो। क्या हुआ? सर कैन यू रिपीट? अच्छा ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग वापस मैं बोल रहा हूं, एनी वर्क डन अगेंस्ट विच यू रिसीव मनी। एनी वर्क डन अगेंस्ट विच यू रिसीव मनी। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने बोला है। एग्जाम्पल नंबर 1, फार्मर सेलिंग क्रॉप्स। फार्मर सेलिंग क्रॉप्स लिख दिया खुशी? सेकेंड एग्जाम्पल, टीचर प्रोवाइडिंग सर्विस। चीटर नहीं, टीचर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड चार्जिंग फीस। बराबर, 2 एग्जांपल काफी है, आगे और भी आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पॉइंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन। हेडिंग डालो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखो, उसका मीनिंग एनी वर्क डन अगेंस्ट विच नो मनी इज रिसीव्ड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले मीनिंग में ना अंडरलाइन कर दो, मनी इज रिसीव्ड। लीटा पाड़ दो ऐसा, मनी इज रिसीव्ड। और नॉन इकोनॉमिक में लीटा पाड़ दो, नो मनी इज रिसीव्ड। नो, ये कीवर्ड याद रखने का, वहां पे पैसा मिलता है, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, नॉन इकोनॉमिक का एग्जाम्पल, डॉक्टर लिखो। डॉक्टर प्रोवाइडिंग फ्री डेंटल चेकअप। प्रोवाइडिंग फ्री वर्ड है, लीटा पाड़ना उसको। प्रोवाइडिंग फ्री डेंटल चेकअप, बराबर है। चेकअप कर रहे हैं लेकिन फ्री में है, तो समाज सेवा नॉन इकोनॉमिक। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, समाज सेवा में बहुत मजा आता है। एक और एग्जांपल लिखेंगे, ट्री
प्लांटेशन, झाड़ उगाना है। सेव प्लानेट, ग्रो ट्रीज। बराबर है, काफी है इतना। तो हमने एक्टिविटी लिखा, एनी वर्क डन। दो टाइप की एक्टिविटी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मीनिंग एनी वर्क डन, मनी इज रिसीव्ड। नॉन इकोनॉमिक में एनी वर्क डन, नो मनी इज रिसीव्ड। सिंपल। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पैराग्राफ हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसको बॉक्स बना लो, मतलब ये एक नया मेन हेडिंग है, बॉक्स बना लेना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखो। उसमें पहला, उसमें तीन है, तीन टाइप्स है। पहला लिखना है बिजनेस, पहला लिखो बिजनेस। सेकंड लिखेंगे प्रोफेशन, वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट। तीसरा लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट। ये मुझे कुछ लोगों के वीडियो ऑन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सुपरवाइजर प्लीज आस्क देम, वेट फॉर 2 more minutes and then please remove them। कृपया यात्री इनको निकाल दें। फिर तीन लिखा, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। चलो नया हेडिंग डालो, बिजनेस। नया हेडिंग डाल दो, बिजनेस। रोहित, प्रतापनगर। रोहित बेटा, 3 टाइप्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 टाइप्स, जल्दी जल्दी बोलो, बिना देखे बुक में। बुक में नहीं देखने का, इधर इधर। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। चलो सरस, आवड़ता है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। किसी को भी जीवन में तकलीफ हो पढ़ाई के रिलेटेड, तुरंत ऐसा रेज हैंड कर देने का। चलो बिजनेस, 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 बिजनेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो बिजनेस, उसके नीचे पहला लिखेंगे मीनिंग। बिजनेस का लिखेंगे मीनिंग। लिखो, द वर्ड बिजनेस केम फ्रॉम। द वर्ड बिजनेस came from the word business came from the word, वापस, the word business came from the word busy, from the word busy। the word business came from the word busy, which means to remain active continuously, to remain एक्टिव कंटिन्यूअसली। बराबर। ये बिजनेस का वर्ड आया कहां से? वर्ड बिजी में से, बिजी। और बिजी मतलब क्या? टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो डेफिनेशन। बिजनेस में ही सेकेंड हेडिंग डेफिनेशन लिखो, any legal economic activity, any legal economic activity, any legal economic activity with the object of earning। निधि ठाकुर, निजामपुरा, बताओ क्या आएगा विद द ऑब्जेक्ट? पहले अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा वापस। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सुपर, लिखो सब लोग, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अंडरलाइन कर दो लीगल, अंडरलाइन कर दो लीगल, अंडरलाइन कर दो इकोनॉमिक, अंडरलाइन कर दो एक्टिविटी।
कल के लेक्चर में मैंने, कल के जूम सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक्टिविटी होनी चाहिए, ऊपर से इकोनॉमिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। और कैसा होना चाहिए? लीगल। इलीगल अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा नहीं। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट। हर इंसान का बिजनेस स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस किसी का ऑब्जेक्टिव होता नहीं है। तो वापस डेफिनेशन, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। ऐसा तो आपको फैलाना ही है, आगे तो फैलाना आता ही आपको। इज नोन एज बिजनेस। बराबर है। जानवी प्रताप नगर, बेटा एक बार मीनिंग और डेफिनेशन जल्दी जल्दी रीड कर लो, ताकि जिसका रहेगा वो देख सके। The word बिजनेस का मीनिंग पहले अनम्यूट करो। The word business came from busy, which means to remain active. Definition: any legal economic activity with the objective of earning. रुको, which means to remain active continuously, ऐसा लिखो, which means to remain active continuously. Word busy means to remain active continuously. Continuously word लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके कॉलेज के एग्जाम में 100 में से 99 आ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन। डेफिनेशन रुक जाओ, किसी को बोलते हैं, रुक जाओ। डेफिनेशन कौन बोलेगा? धैर्य कार्यलिबाग, धैर्य अनम्यूट करो बेटा पहले। यस सर। डेफिनेशन बोल दो फटाफट। सर, any legal economic activity done with the objective of earning profit is known as business. और लॉस हो तो? लॉस तो भी बिजनेस ही होगा सर। तो भी बिजनेस तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का है। जोरदार, समझ में आ गया, दिमाग में चला गया, दिल को छू गया। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं ना सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्क्रीन पे मेरे, बहुत सारे लोगों ने ना ब्रांच पहले लिखा है और नाम बाद में लिखा है, और ब्रांच भी है ना पूरा लिखा है, मतलब अब जैसे कि प्रताप नगर है तो पूरा प्रताप नगर। कुछ बच्चों ने देखो दिमाग लगाया पीएनजी लिखा है। अब जिन्होंने प्रताप नगर लिखा है ना, उनका नाम तो आ ही नहीं रहा है, वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो अब मैं कैसे बुलाऊं प्रताप नगर? तो नाम पहले लिखो और पीएनजी। सुभानपुरा वाले भी ऐसा कुछ शॉर्टकट ले सकते हैं, पहले नाम और एसयूबी, बराबर। निजामपुरा वाले NIZ, ओपी रोड वाले तो ओपी है, और बाकी कारेली बाग वाले KAR। तो सब शॉर्टकट इस्तेमाल करो, चलेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ब्रांच पहले लिख रहे हो, ब्रांच में ही आपकी स्क्रीन आ गई है, तो नाम कहां से मैं ढूंढूं? फिर मुझे आपके कपड़ों के कलर से बुलाना पड़ेगा, बराबर है। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जरा नाम पहले, और जो ब्रांच है वो छोटा सा एब्रीवेशन, छोटे से। डन? ठीक है, चलो बिजनेस का हमने मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखा। अब एग्जाम्पल, बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल, नेक्स्ट हेडिंग डालो एग्जाम्पल, बिजनेस के एग्जाम्पल। अच्छा, कौन बताएगा मुझे बिजनेस का एग्जाम्पल? बिजनेस का कोई एग्जाम्पल कौन बताएगा? कौन है वो जो मुझे बताएगा? शगुफ्ता अनम्यूट करो। बिजनेस का कोई एग्जाम्पल, कोई भी एक बिजनेस जो चल रहा है मार्केट में। अनम्यूट नहीं, हाँ हो गया। अब बताओ कोई भी, कोई एक ही। यस सर, मास्क। ठीक है, चलो तो अभी इसके हम बाहर आ ही नहीं रहे हैं ना, ये कोरोना ऐसा मतलब दिमाग का दही कर दिया है ना, पहले मास्क ही दिखता है। चलो कशो वांदो नहीं, मास्क लिखो, ऐसा मास्क बिजनेस, एग्जाम्पल लिख दो, मास्क बिजनेस। कुछ लोग मुंह बिगाड़ रहे हैं सर, एक तो पहनने का भी ना भी लिखने का भी। ठीक है, प्रिया सुभानपुरा, प्रिया सुभानपुरा अनम्यूट करो। बिजनेस का एग्जांपल एक और, आवाज कट गया वापस।
water. आवाज नहीं आ रहा है ठीक से बेटा। हाँ हाँ बोलो। Alkaline water. कौन सा वाटर? Hello. बेटा कौन सा वाटर? कहाँ से पानी लेके आए हो तुम? बड़े दूर से। चलो थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम किसी और को पूछ लेते हैं। खुशबू शाह, खुशबू शाह। यस सर। बिजनेस का एग्जांपल कोई एक, कोई भी बिजनेस जो मार्केट में चल रहा है, वो लोग कुछ चीजें बेच रहे हैं बदले में पैसा ले रहे हैं। मेटल मार्केट। मेटल मार्केट, ठीक है मेटल मार्केट। चलो लिख दो भाई, आपके दोस्त ने बताया, लिखना पड़ेगा, उसको बुरा लगेगा। मेटल मार्केट, मेटल लोखंड। अच्छा स्वाति, स्वाति हैज रेज्ड द हैंड। स्वाति, स्वाति, स्वाति आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वाति, स्वाति अनम्यूट करो बेटा। अच्छा साक्षी फ्रॉम प्रतापनगर कुछ बोल रहे हैं कि उसका कुछ क्वेरी है, चैट में उसने डाला है कि आप बता सकते हो कैसे पेपर होते हैं? जस्ट आइडिया थोड़ा, कैसे पेपर होते हैं, मतलब आप एग्जाम के रिलेटेड पूछ रहे हो? बेटा अभी लर्निंग इज इन प्रेजेंट, लर्निंग इज इन प्रेजेंट। जस्ट चिल, जस्ट चिल। मार्क्स लाने की जवाबदारी भी हमारी ही है, टेंशन मत लो। अभी खाली शांति से लेक्चर एंजॉय करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ हम आपको एग्जाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करवाएंगे। क्या पता आपका नसीब अच्छा हो, एग्जाम ही ना हो, बराबर है? तो अभी एग्जाम का टेंशन मत लो, अभी खाली लर्निंग लर्निंग लर्निंग, अर्निंग 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 बाद में। भणता पहला तो मार्क्स की चिंता થઈ गई છોકરાઓ ने। सर क्या करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो जल्दी 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 जल्दी। अभी मैं किसी को 2-3 एग्जांपल पूछ लेता हूं ताकि ये खत्म हो जाए टॉपिक। किसको पूछेंगे, किसको पूछेंगे, किसको पूछेंगे, किसको? बहुत सारे ने रेज हैंड किया है लेकिन मैं चाहता हूं मुझे कोई दिख जाए। कौन है वो जो मेरी नजर में आएगा? व्रज प्रजापति। सर सैनिटाइजर। यार पाछो आया तू। सर का तो हेयर सलून। हाँ हेयर सलून, हेयर सलून लिखो भाई, हेयर सलून, हेयर सलून भाई, हेयर सलून बिजनेस लिख दो। ठीक है। रिद्धि प्रतापनगर, रिद्धि प्रतापनगर। सर क्लोथिंग। क्या? क्लोथिंग। क्लोथिंग, क्लोथिंग कपड़ा। सर शॉपिंग 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 शॉपिंग, क्लोथिंग 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 लिखो, क्लोथिंग बिजनेस। इतना काफी है सर, हमको आवड़ता है। अच्छा किसी ने लिखा है यू विल क्लासेस। हाँ बेटा प्रमोशन तो तुम ही करते हो हमारे लिए, थैंक यू। सरस। तो उसमें ऐसा यू विल क्लासेस एग्जांपल नहीं लिखने का, एजुकेशन एजुकेशन ऐसा लिखने का, बराबर है? चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोफेशन। हमने बिजनेस का मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखा और एग्जांपल लिखे, बराबर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग, प्रोफेशन में पहले मीनिंग लिखो। मीनिंग में a person having specialized knowledge, a person having specialized knowledge and skills, specialized knowledge and skills through training
थ्रू ट्रेनिंग, बराबर। अ पर्सन हैविंग कौन सा नॉलेज, एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो सबके पास नहीं होता है, और उसके पास स्किल्स भी एकदम कैसी है, रेयर, स्किल भी ऐसी रेयर है जो उसको कैसे मिली है, ट्रेनिंग के थ्रू। उसने कुछ ट्रेनिंग की हुई है, कुछ एग्जाम दी है, कुछ उसने नॉलेज हासिल किया हुआ है, तब जाके उसके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेक्स्ट लाइन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ईशा, ईशा प्रोफेशन के एग्जाम्पल। सर लॉयर। लॉयर, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखो लॉयर। अच्छा, किसी ने बोला है रिपीट करने के लिए प्रोफेशन का मीनिंग, तो आप एग्जाम्पल लिखो, तब तक मैं वो वापस रिपीट कर रहा हूं। अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू ट्रेनिंग, बराबर। एक एग्जाम्पल लिखा लॉयर, लॉयर, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद सिया फ्रॉम कारेलीबाग, प्रोफेशन का एग्जाम्पल। सिंगिंग डांसिंग। सिंगिंग डांसिंग, जोरदार, हास कहीं ना हुआ है वो, नहीं तो बता सीए, लॉयर, डॉक्टर, इसको ही पकड़ के बैठते हैं। चलो अभी नया प्रोफेशन आया, नया पैशन आया है, सिंगिंग डांसिंग, ये भी तो प्रोफेशन है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ये। सबको डांस करने को नहीं आता है, क्या हम डांस सकते हैं माधुरी दीक्षित जैसा, डोला रे डोला, अरे वो तो ऐश्वर्या है, सॉरी। हाँ, फिर ऐसा ऋतिक रोशन डांस करता है, ये कौन है वो टाइगर लायन कौन है, वो कैसा डांस करता है, पैरों से हाथों से, पता नहीं कैसे डांस करता है। अपना तो खाली गणपति डांस होता है। तो सबके पास ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है। ये हरी बोल जो है वो भी बहुत अच्छा डांस करता है, हरी बोल जो है बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन ऑफ बीट, ऑफ बीट वो अपना ही करता है। कुछ लोग होते हैं ना, गाना बजता है डीजे वाला लेकिन डांस करते हैं गणपति वाला, तो ऐसे लोग होते हैं। अपने ऐसा बीट पे ऐसा बीट पे बूटी ऐसा अपने को नहीं आता है, अपनी बूटी हिलती रहती है। तो सबके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता नहीं है। ऐसा सिंगिंग, ऐसा सुर वूर कोई पकड़ता नहीं है, अपने सब बाथरूम सिंगर है, पानी अपने आप गर्म हो जाता है, अपने ऐसा गाते हैं जोरदार। तो अपने पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है नहीं है, बराबर। रैप सब लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने रैप का रेप हो जाता है, तो अपने नहीं कर सकते वो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस लिख दिया, प्रोफेशन लिख दिया, तीसरा बच गया एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग लिखो इसमें, एनी वर्क डन against which you get salary in return, any work done against which you get salary, કામ કરવાનું બદલામાં શું મળે, પગાર। और ब्रैकेट में आप लिख दो जॉब। एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है, जॉब। किसी को गुजराती में लिखना हो तो लिख दो नौकरी, बराबर है। एग्जाम्पल अभी मैं पूछूंगा नहीं, टाइम लिमिटेड है, मैं ही बता देता हूं। सर तमें कही दो, फटाफट लिखी दीजिए। लिखो स्कूल स्टाफ। अच्छा, ये स्कूल स्टाफ से मुझे याद आया, जरा स्क्रीन पे देखेंगे आप। सबसे पहले है ना, अपने सर पे ऐसा हाथ रख दो सब लोग, जल्दी अपने सर पे हाथ रख दो, 1 मिनट के लिए जल्दी ऐसा करो, जल्दी मुझे सबके सर पे हाथ चाहिए अपना खुद का, जल्दी। जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक नहीं, ऐसा स्क्रीनशॉट लेने का है मुझे, जल्दी हाथ रखो अपने खुद के सर पे, बाजू वाले के नहीं। अरे जल्दी रखो, कुछ लोगों के हाथ नहीं दिख रहे मुझे अभी भी। सर पे हाथ रखना है, हाथ पे सर नहीं रखना है। जल्दी रख दिया? हाँ सर कब से रख दिया है। अब ऐसा बोलो
यस हाथ क्या हटाओ, हाँ हाथ बदलवाना नहीं तो बड़ी जो बोलेंगे वो बदल जाएगा। ऐसा कोई भी एक हाथ स्टेबल रखो और ऐसा बोलो वी ऑल आर ब्लेस्ड। ऐसा बोलो वी ऑल आर ब्लेस्ड because we cleared our 12th standard in 2019-20 because we cleared our 12th standard in 2019-20 we are blessed। शाबाश, बच्ची गया, तुमने स्कूल की लाइफ जी ली है। 2019-20 जलसा करी लीधा स्कूल में। अभी की जो 12th स्टैंडर्ड की जो बैच है बेचारी रो रही है, ना स्कूल जाने को मिल रहा है, ना फ्रेंड्स को मिल पा रहे हैं, ना मैडम को ना सर को गालियां दे पा रहे हैं, ना बंक मार रहे हैं, ना स्कूल यूनिफॉर्म पहन पा रहे हैं। उनकी जिंदगी जंडवा एंड नो घमंडवा। तुम बहुत नसीब वाले हो। साला कॉलेज में एंट्री भी हो गया, 12 स्कूल लाइफ भी एंजॉय कर दिया। जोरदार, मजा आई गई सर, नसीब लईने पैदा थया छे। वेरी गुड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, स्कूल स्टाफ के बाजू में लिखो गवर्नमेंट स्टाफ। गवर्नमेंट ऑफिस में लोग जो काम करते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी। कॉमा, आज के सिनेरियो में एक और एग्जांपल, हॉस्पिटल स्टाफ, धरती पे रहने वाले भगवान, हमारे डॉक्टर, बराबर है। तो उनके जो स्टाफ है हॉस्पिटल में, उनको मिलता है सैलरी, बराबर। 3 एग्जांपल काफी है। तो आपने लिखा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। डन, ठीक है। बुक बंद कर दो, पेन रख दो, स्क्रीन पे देखो, जता ना रहता उभा रहो। बुक रख दो, पेन रख दो, स्क्रीन पे देख लो, जो आपने लिखा वो थोड़ा रैपिड फायर, बराबर। सुन लो, लास्ट 2 मिनट्स। देख रहे हैं सब लोग स्क्रीन पे? यस। तो सबसे पहले आपने लिखा, आपने बुक में लिखा, मैं बोल रहा हूं आप सुनना। सब्जेक्ट का नाम SPB, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, यूनिट नंबर 1, सेमिस्टर नंबर 1। सबसे पहले आपने वर्ड चालू किया एक्टिविटी के साथ। कौन सा वर्ड? एक्टिविटी। एक्टिविटी इज व्हाट? एनी वर्क डन, कोई भी काम, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी 2 टाइप की, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। एक्टिविटी 2 टाइप की, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फिर आपने हेडिंग डाला इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपने लिखा मीनिंग, एनी वर्क डन अगेंस्ट विच, आपने लीटा पढ़ा था, मनी इज रिसीव्ड। एनी वर्क डन अगेंस्ट विच मनी इज रिसीव्ड। एग्जाम्पल आपने लिखे थे, फार्मर जो काम कर रहा है, मतलब फार्मर जो क्रॉप्स बेच रहा है, टीचर जो सर्विस दे रहा है, कारपेंटर जो काम कर रहा है, कोई भी काम बदले में क्या ले? पैसा। नॉन इकोनॉमिक, एनी वर्क डन, नो मनी इज रिसीव्ड। सोशल सर्विस, समाज सेवा, ब्लड डोनेशन, डेंटल चेकअप, फ्री चेकअप, ट्री प्लांटेशन, झाड़ू गाया आपने, नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स? 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस वर्ड आया फ्रॉम द वर्ड बिजी मतलब टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। फिर डेफिनेशन, any legal economic activity with the object of earning profit। लॉस हो तो भी बिजनेस बोलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, बराबर। फिर बिजनेस का मीनिंग लिखा, फिर डेफिनेशन लिखा, फिर उसके एग्जाम्पल लिखे। कोई भी मार्केट में आप एग्जाम्पल उठा लो, खाने का बिजनेस ले लो, कपड़ों का बिजनेस ले लो, टॉयज का बिजनेस ले लो, मेटल का किसी ने बोला एग्जाम्पल, वो ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बदले में क्या मिले? पैसा, लेकिन लीगल होना चाहिए, बराबर। फिर प्रोफेशन,
अ पर्सन, कौन सा नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज, कौन सा नॉलेज, स्पेशलाइज, कैसे मिलेगा, थ्रू ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग होती है और उसको सब सिखाया जाता है। उसके एग्जांपल सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये सब कौन है, प्रोफेशन, बराबर। बदले में लोग क्या लेते हैं, फीस, बदले में क्या लेते हैं, फीस। और एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, काम करो, बदले में क्या मिलेगा, सैलरी, क्या मिलेगा, सैलरी। तो कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन के नाम लिखो, लेकिन वहां पे जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ, वो लोग जो काम करने के बाद उनको जो पगार मिलता है, पगार, सैलरी जो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, बराबर। आज जो मैंने सब समझाया ये और ज्यादा प्रैक्टिकली डिटेल में आपको आज के वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिलेगा, राइट। तो आज से जो आपके वीडियो लेक्चर है वो आपके सब्जेक्ट के जो कंटेंट है, कॉलेज के जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने बोला है, मेरे हर लेक्चर में स्टार्टिंग के पहले 10 मिनट्स बिजनेस फंडा होंगे, बिजनेस फंडा होंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है कि धंधा कैसे करने का, बिजनेस के वक्त क्या ध्यान देने का, तो पहले वो देखने का। उसके बाद हमारा जो कॉलेज का कंटेंट है वो कवर किया है, वो एग्जाम्पल के साथ समझाया। और लास्ट में आपको कुछ टास्क दिया है। लेक्चर नंबर 1 में कोई टास्क नहीं था, खाली मैंने जूम सेशन में कल बोला था, जूम सेशन में मैंने बोला था कि पतंजलि का ओनर कौन है, पतंजलि का ओनर कौन है, आपने ढूंढ लिया हो तो अच्छा है, वो आप अपने नोटबुक में लिख देना। तो आज के वीडियो लेक्चर में, ऐप में जो वीडियो लेक्चर है, लास्ट के 2 मिनट में एक स्लाइड है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ढूंढ के आंसर लिखने हैं। अब किसी की ऐसी क्वेरी है, क्या सर हमें जूम का और ये वीडियो लेक्चर का सेम बनाना है बुक? हाँ, दोनों का सेम बुक बनाओ, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। खाली आप हेडिंग डाल दो, जूम सेशन नोट्स और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर नोट्स, खाली ऐसा हेडिंग डाल दो, अलग अलग बुक बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉमन बुक चलेगा, बराबर है, राइट। और आज के लेक्चर में जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, स्क्रीन पे जो जो आपको दिखेगा वो सब कंटेंट आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है। दैट इज योर प्रैक्टिस एज वेल एज होमवर्क। वो आज का आपका होमवर्क है। स्क्रीन पे जो कंटेंट दिख रहा है, स्लाइड में जो आपको दिखेगा वो आपको नोटबुक में लिखना है, फोटो क्लिक करके सुपरवाइजर को भेजना है, राइट। और अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कि आप अपने ओपिनियंस, उस ऐप के अंदर ऑप्शन होता है, आप लेक्चर के बाद अपने रिव्यूज दे सकते हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पर्सनल लेवल पे भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपनी अच्छी बातें लेक्चर के रिलेटेड शेयर करोगे तो हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन, हमको भी मिलेगा मोटिवेशन। तो शेयर योर थॉट्स, अगर अच्छा लगे तो कुछ ना कुछ ऐसा टाइप करने का, स्माइली वाइली भेजने का, तो अच्छा रहेगा, समझे। थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल। डन। सब लोग जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं बाय बोलकर, बाय बाय। बाय 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 बाय। ठीक है, मैंने अनम्यूट कर दिया है, चलो बाय 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 बाय। बाय।